Shall I start? Yes, ma'am. Okay, so good afternoon, all of you. So today we are going to begin with this chapter, which is business incubators, angel investors, venture capitalists, and private equity funds. Now, look, as all of us know that this money is actually the life force of any business. Okay, and if you have to start with any business, then what do you need? You need money. Okay, so now look, there are different sources from which you can get money. अब कौन से sources हैं? Look, the first source is called as business incubator. Okay. Now, look, what is a business incubator? A business incubator is basically a workspace which is created to offer startup and new ventures access to whatever resources they need under one roof. Okay. सो बिजनेस इंक्यूबेटर के अंदर क्या होता है, एक वर्क प्लेस टाइप, एक आपको एक ऐसा एरिया दिया जाता है जहाँ जहाँ पे आपको अपना बिजनेस एक्चुअली अगर लाइव लेके आना है, ओके, उसको एक प्रॉपर शेप देनी है, उसको मार्केट में लेके आना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको जो जो चीजें चाहिए, चाहे आपको रिसोर्सेज चाहिए, आपको टेक्निकल मैन पावर चाहिए, ठीक है, टेक्निकल नो हाउ चाहिए, कोई और तरह की ट्रेनिंग चाहिए, कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प चाहिए, आइडिया के रिलेशन में हेल्प चाहिए, whatever help you need, you will get all that help under one roof. So like one example of business incubator is IIT Delhi. तो IIT Delhi क्या करता है, बहुत सारे entrepreneurships का hand holding करता है और उनके business को वहीं पे incubate कराता है और फिर mentors assign करता है, resources assign करता है, पैसे भी देता है, सब कुछ देता है. And their main aim is that whatever idea that they have is actually put on wheels, and it is brought into the market. Fine. Now, let us just look at the formal definition. It says a facility established to nurture young firms during their early months or years. It usually provides affordable space, shared offices and services, hands-on management training, marketing support, and obviously some access to financing as well. So as you can see over here, this is providing with you with most of the basics that you need for starting up your business. Fine. Now look, what is the main objective of this business incubator? Okay, if somebody is giving you a business incubator thing, okay, if he is helping you with all this, why is he doing that? Look, basically the main purpose is that they want to reduce over here the cost of launching the enterprise. Now look, now one person maybe has a very good idea, maybe he knows from where to get the resources, but he might not be good with marketing of the product, or he might not know how to manage the firm. Okay, but still he might want to launch the enterprise. Then ऐसे बिजनेस इंक्यूबेटर्स क्या करते हैं, वो आपकी हैंड होल्डिंग करते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरते हैं, आपको चीजें सिखाते हैं, जो आपकी कॉस्ट है रनिंग द एंटरप्राइज की उसको कम से कम रखने की कोशिश करते हैं. ठीक है, सो दे गिव यू ऑल दी सपोर्ट दैट यू नीड. Fine. And they have an experienced pool of professionals who help you with everything, right from technical support to infrastructure support to legal support to venture funding, patent filing, any type of mentoring, anything you ask for. Fine. Now look where this concept was actually born from. This actually came from US, whereby there were many there were many inventors who were actually inventing good products, but they were not able to successfully convert it into useful products. Okay, so like it says that there was this first business incubator by the name of Student Agencies Inc. in Ithaca. Okay, इसने क्या help करा? It helped to reduce the high transaction costs while culminating inventions into marketable products. Thereafter, in 1946, the first incubator outside student inventions into marketable products also began. Okay, first incubator जो outside student committee के बना था वो था by MIT. Okay, this you must have heard. It's a very, very famous college in US. Okay, with the name American Research Development. Okay, since then you will see that a lot of business incubators have come up, and they really do the hand holding, and they help businesses grow. Fine. Now, who are the sponsors for business incubators? Generally, like I told you, local colleges and universities. Like I gave you the example of IIT Delhi. Most of the IITs, IIMs, they are doing it. Government entities such as municipalities. So government is also, thriving all these things. It has also launched its own courses, whereby it is giving push to entrepreneurship. Then इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कैसे हो गई, जैसे UNDP हो गई, WHO हो गई, ये लोग भी सपोर्ट देते हैं एंटरप्रेन्योर्स को.
ठीक है। देन फॉर प्रॉफिट वेंचर्स इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कंपनीज, तो इसके अंदर आपका कोई भी फॉर प्रॉफिट में आ गया, अंबानीज भी सपोर्ट कर सकते हैं, अडानीज भी सपोर्ट कर सकते हैं, विप्रो भी सपोर्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन विच बिजनेस यू आर एंड व्हाट टाइप ऑफ सपोर्ट और आइडिया डू यू हैव बेसिकली इन योर माइंड. So now look, business incubation again, it has these 4 stages. Now look, the first stage is called as the pre-incubation stage, whereby funds are provided to promote research, training and effective business planning. Okay, we call it as RTP. In then there is an early stage. In early business stages, what happens is that now look, the product vagera is ready. Now what you are basically given help with, you're given help with marketing, technical, legal and accounting facilities. Okay, we can call it MLAT. In the classic incubation stage, basically what do? You basically give them funds to increase their business. ओके और बिजनेस को अगर ग्रो करना है तो उसको ग्रो करने के लिए फंड्स और सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है. एंड लास्ट ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन स्टेज, फंड्स आर ऑफर्ड or derived for marketing the product service to offer incidental support to enable the startup to reach customers on a mass scale. So if you are a startup which has experienced success in India and you want to go global, okay, and you want somebody to help you out during that stage, to take you from here to here, then in that case, you can ask for this business incubation help under the last stage. Now, what are the features of business incubators? I think these features, so you can look on your own. I will just quickly come to the advantages of business incubators. Now, look, business incubators, they provide tangible as well as intangible benefits. Tangible में क्या मिलता है? पैसा मिलता है. Intangible में क्या मिलता है? Services मिलती है, marketing assistance मिलती है, technology का support मिलता है, ठीक है, ऐसी सारी चीजें मिलती है. They offer access to services of accountants, lawyers, coaching, mentorship, etc. अब आपको नहीं पता, आपको रिटर्न फाइल करना है, ठीक है, आपको जीएसटी का भी रिटर्न फाइल करना है, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी का भी कुछ फॉर्म भरना है, आपको नहीं आता करना. हाउ विल यू डू इट? ओके, लेट अस से यू हैव टू फाइल अ पेटेंट फॉर योर प्रोडक्ट और यू वांट सम कॉपीराइट, या आपने कुछ बहुत नया निकाला है, आप चाहते हो कि सिर्फ मैं ही वो बेच पाऊँ, कोई और ना बेच पाए, तो इन सब चीजों में अगेन दे हेल्प. Then they facilitate ready to go space and ready to use infrastructure facilities. अभी जगह देते हैं आपको काम करने की, जो कि बहुत जरूरी चीज है. अगर कोई बिजनेस सेटअप करना है तो कहाँ करोगे ना, जगह भी तो चाहिए. तो they offer you that free kind of a space. Okay, they provide access to full-time incubator support staff that can help the enterprise in matters relating to finance, marketing, sales. This is self-explanatory. तो आपको जो भी support चाहिए, they give you all that support. Due to availability of ready-to-use office space, meeting and conference room, access to hardware and technical support required by the firm, conduct of daily business becomes smooth. As they are giving you all the support, so it is very easy for you to do a business. Fine. Now incubators क्या करते हैं? In return for giving all the facilities, they generally charge a small fee as rent. Okay, but it is again very cheap, in case you would have gone alone in the market and done all those things on your own. It is way cheaper than the fees that they charge. It's very small fees generally, not too much. ठीक है. फिर क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट करने में भी हेल्प करते हैं. अगर आपको कोई वेंचर कैपिटलिस्ट चाहिए, कोई एंजल इन्वेस्टर चाहिए, तो उसको भी लाने में हेल्प करते हैं. Okay, so these are some of the main advantages. Okay, what are the disadvantages? देखो ये जो इंक्यूबेटर्स है बेटा, ये आपके ना शुरू में ही हेल्प करेंगे. ये बाद की स्टेज में जाके दे माइट स्टार्ट इंटरफेयरिंग विद द वर्किंग ऑफ द फर्म, और दे माइट कॉज सम मॉनिटरिंग प्रॉब्लम्स ऑन यू. तो जनरली ना इनका जो रोल है वो शुरू में ही अच्छा लगता है. उसके बाद ना बिजनेस इंक्यूबेटर्स आर नॉट वेरी सक्सेसफुल. Fine. Now these are some of the examples. I think I've already shared the file with you. You can just quickly go through it on your own. I am just quickly coming to some of the renowned government-funded business incubators. Okay. So one is called as your NSTD. Now what is this NSTD? Now look, NSTD was established by Government of India in 1982, and the primary objective is to promote self-employment among the in the country. ठीक है. So it aims to set up knowledge based and innovative driven enterprises. तो इसका aim main aim क्या है? ये product driven enterprises पे नहीं focus कर रहा ना, service based पे कर रहा. ये किस पे कर रहा है? ये knowledge based पे कर रहा है. knowledge based पे कैसे? मैम एग्जांपल देके बताओ जरा. बेटा आजकल ना एक बड़ी नई चीज आ गई है कि ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ना वो साइंड होके आने चाहिए, आपके साइन होने चाहिए. अभी डिजिटली कैसे साइन करोगे? डिजिटल सिग्नेचर तो बनवा नहीं रखे आप लोगों ने, कैसे साइन करोगे डॉक्यूमेंट के ऊपर? सो देयर इज बिल्कुल शुरू में जाना चैप्टर के एक केस स्टडी दी हुई है जिसमें एक बंदा है आईआईटी का, उसने एक ऐप बनाया है जो कि आप कहीं पे भी हो, फोन पे हो, लैपटॉप पे हो, विद द हेल्प ऑफ द ऐप, विद द हेल्प ऑफ दैट ऐप यू कैन इजीली साइन ऑन एनी डॉक्यूमेंट दैट यू वांट. Easily you can do that.
ओके तो व्हाट इज इट? इट इज अ नॉलेज बेस्ड स्टार्टअप। नॉलेज है ना आपको, इसलिए आपने ऐसा स्टार्टअप बना लिया और वो चल रहा है, लोग खरीद रहे हैं, बिक रहा है वो। तो दिस इज सम ऑफ some of the things that it encourages. Then it conducts programs to encourage science and technology background persons, academicians and researchers to take up entrepreneur journey as a career choice. तो ये रेगुलर बेसिस पे वर्कशॉप्स कराएगा, प्रोग्राम्स कराएगा, encourage करेगा लोगों की कि उनको entrepreneur बनना चाहिए। ठीक है, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी ये हेल्प कराता है आपको। ठीक है, देन आफ्टर दैट वी हैव द नेक्स्ट थिंग व्हिच इज कॉल्ड एज ISBA. Now what is this ISBA? This ISBA is your Indian Science and Technology Entrepreneurs Park and Business Incubator Association, as the name itself is saying. This was started in 2004. Okay, this was under Department of Science and Technology, Government of India. ये भी क्या करता है? ये basically incubation activities provide करता है by sharing information, experiences, networking assistance among business incubators, entrepreneurship parks बना रखे हैं इन लोगों ने। तो if you go towards Bangalore side, तो वहाँ आपको बहुत सारे entrepreneurship parks वगैरह दिखेंगे, जहाँ पे स्पेशली जिन लोगों को entrepreneurship में ही आगे बढ़ना है, उन लोगों को हर तरह की assistance दी जाती है। उसके बाद क्या होता है, ये ना आपको एक नेटवर्क क्रिएट करने की कोशिश करता है। मानो यू हैव कम अप विद समथिंग, आपने भी मानो कोई एक ऐसा स्टार्टअप निकाला है जो कि डॉक्यूमेंट पे ना कुछ साइन वाइन का कुछ करवाता है, तो आपको ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, नाउ यू नीड सम असिस्टेंस, सो व्हाट विल इट डू? इट विल गिव यू नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, इट विल कनेक्ट यू टू लाइक माइंडेड पीपल, इट विल कनेक्ट यू टू दोस पीपल हु आर ऑलरेडी इन दैट डोमेन, हु आर ऑलरेडी doing startups over there, and it will help get you help from those people, so that they can share their experiences, and you can get help from those type of people. तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। ठीक है, अब इन लोगों का मेन काम क्या रहता है? देखो, इनका मेन काम ये रहता है कि ये लोग एनुअल कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स अच्छे करवाते हैं ताकि एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट मिल सके, इंक्यूबेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराते हैं। ठीक है, इन्होंने अलग अलग जगह सेंटर्स खोले हुए बिजनेस इंक्यूबेटर्स के। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट दीज पीपल डू। Fine. Now let me come quickly to angel investors. Now, what are these angel investors? Look, angel investors are very, very rich people. Okay, they are very affluent individuals, and whose main aim is just to provide capital to budding entrepreneurs in these startups. ठीक है, इनको क्या चाहिए? ये कह रहे हैं कि अच्छा, इसके पास अच्छा आइडिया है, चलो इसको पैसे दे देते हैं। ठीक है, दे दिए पैसे। अब मैम कोई फ्री में तो पैसे देगा नहीं, उसका भी कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा ना, उसको क्या मिलेगा बदले में? बेटा वो कहते हैं मुझसे कैपिटल ले जाओ, और बदले में मुझे क्या करो? मुझे ना बदले में इक्विटी शेयर्स इशू कर दो अपने फर्म के अंदर। ठीक है, जब आपकी फर्म अच्छा करने लगेगी तो मैं शेयर्स को बेच दूंगा और प्रॉफिट कमा लूंगा। So this is how these people, they basically functions. So these are basically high net worth individuals who invest in return for equity participation in the money, and they generally invest their own funds. Okay, and they're on a constant lookout for new companies, new ideas. वो लोग क्या देखेंगे? वो देखेंगे अच्छा अभी आपकी कंपनी अभी भी बनी है, अच्छा 2 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, खरीद लो जितना खरीदना है खरीद लो। दे विल वेट 200, 300, 400 आपका शेयर पहुंचेगा, दे विल सेल ऑफ, दे विल गेट आउट ऑफ द मार्केट। ऐसा करते हैं ये लोग। ठीक है, अपने पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं अपॉर्चुनिटीज देख देख के। ठीक है, नाउ अब आजकल देखो थोड़ा ना अलग हो गया, आजकल एंजल इन्वेस्टर्स ने भी क्या करा, अपना ग्रुप बना लिया है। ठीक है, और वो लोग क्या करते हैं, वो रिसर्च वगैरह, नॉलेज वगैरह करते रहते हैं अपनी एंटरप्राइज के हिसाब से। ठीक है, और आजकल वो लोग काफी मतलब रिसर्च ओरिएंटेड स्टार्टअप्स और हाई टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स की तरफ देखने लगे हैं, क्योंकि आजकल जमाना ही उन्हीं का है। वी आर विटनेसिंग मोस्ट ऑफ द ग्रोथ ओवर देयर ओनली. So like your book is giving you the example, it is giving you the example of this Miss Krishna Ganesh. He's an IIM Calcutta alumnus and one of the leading angel investors in India. ठीक है, currently he is the CEO of Tutor Vista, which is an online tutoring company. He is the true example of angel investors, whereby he and his wife have invested in nearly 23 startups. Can you imagine? 23 startups में invest किया है, having 100% success rate, और सारी की सारी successful रही है. They have invested in various industries ranging from internet to education to tech companies. This shows that how well diversified their portfolio is. ओके, तो आप देख सकते हो कि कितना वेल डाइवर्सिफाइड आजकल ये लोग, इनका पोर्टफोलियो रहता है। तो दे डोंट पुट ऑल देयर एग्स इन वन बास्केट, रादर दे गो फॉर डाइवर्सिफिकेशन। अगर इनके पास 100 करोड़ रुपए है तो ये 100 करोड़ एक फर्म में नहीं लगाएंगे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग रिसर्च करके अलग अलग जगह पैसे लगाएंगे, विच इज आई थिंक वेरी वेरी अंडरस्टैंडेबल।
Fine. Now let us look at the types of angel investors. Look, we have different types of angel investors. First, beginning with corporate angels. Now look, angels कौन होते हैं? These are basically professionals like the director of a company, general manager of a company, जो कि बहुत senior level पे है, corporate level पे. ठीक है, एंड दे आर इन वेरी वेरी गुड कंपनीज एंड या तो इन लोगों ने वो नौकरी छोड़ दी है या इन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया है, कुछ भी इस तरह का इन्होंने लिया है और इनके पास बहुत सारा पैसा है. इनको अब कहीं ना इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए. ठीक है, अब देखो इन्वेस्टमेंट के लिए तो चाहिए, ये तो अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए. और इन्वेस्टमेंट ये जनरली कौन सी रेंज में करते हैं? कैन यू सी, आई हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड, इट इज फ्रॉम $20,000 टू $1 million. ठीक है, इसके रेंज में ये इन्वेस्ट करते हैं. और उसके अलावा ये डे टू डे वर्किंग में भी हेल्प करते हैं क्योंकि ऑलरेडी खुद ही अच्छी अच्छी कंपनीज में काम किए हुए हैं, तो उनको काफी एक्सपीरियंस होता है. तो ये ना वहाँ पे दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में सीनियर लेवल का रोल भी ले लेते हैं, बहुत बार डे टू डे वर्किंग में भी हेल्प कर देते हैं. एंड यू नो ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स हैपन ओवर देयर. फिर दूसरे होते हैं एंटरप्रेन्योर एंजल्स. ये वो एंजल्स हैं जो कि अपना अच्छा खासा खुद का ही बिजनेस चलाते हैं. वो कहीं नौकरी वोकरी नहीं करते, कॉर्पोरेट में नहीं है, अपना बिजनेस चलाते हैं. और ये क्या करते हैं कि ऐसे बिजनेसेस ढूंढ रहे हैं जो कि इनके बिजनेस में भी हेल्प कर पाए. मतलब मानो मैं लेटर से आई एम अ वेरी बिग कंपनी एंड यू नो आई एम इनटू स्टील. मैं स्टील के बर्तन बनाती हूँ, बहुत स्टील के बर्तन बनाती हूँ. ठीक है, स्टील की सारी वैरायटी है मेरे पास. अब मैं क्या ढूंढूंगी? मैं देखूंगी कि मेरे पास सिनर्जी इफेक्ट्स आने चाहिए. सिनर्जी इफेक्ट्स कहाँ से आएंगे? मानो मैं किसी से रॉ मटेरियल खरीदती हूँ स्टील का, तो मेरा मन ये करेगा कि मैं ना एक ऐसे स्टार्टअप पे इन्वेस्ट करूं जो इंडिया में ना मुझे बढ़िया से बढ़िया स्टील बना के दे दे कम से कम कॉस्ट में. तो तुम समझ रहे हो, ये उस तरह की चीजों में इन्वेस्ट करेंगे जो कि इनके बिजनेस से लिंक्ड है और जो इनके बिजनेस में इनको हेल्प करेंगे. या फिर मानो आपने कोई बहुत अच्छा ऑनलाइन पोर्टल निकाल लिया जहाँ पे बर्तन ऑनलाइन आप बेच रहे हो और कह रहे हो कि ना हम सब काम करवा देंगे आपको ऑनलाइन ही. तो यू नो दे विल इन्वेस्ट इन दोस टाइप ऑफ फर्म्स. नाउ इनका इन्वेस्टमेंट थोड़ा भारी भरकम रहता है. तो इनका इन्वेस्टमेंट जो है ये $2 लाख से $5 लाख तक रहता है. ठीक है, ओके. नाउ दूसरे होते हैं आपके एंथुजियास्टिक एंजल्स. अभी एंथुजियास्टिक एंजल्स कौन से होते हैं? देखो, दीज आर जनरली ओल्ड एंड इंडिपेंडेंटली वेल्दी इंडिविजुअल्स who are successful in their business, but they want to encourage others and they want to bring out major changes in the society. ठीक है, तो उनके लिए क्या है, ये बेसिकली पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट, इनकी हॉबी है. ठीक है, जैसे रतन टाटा हो गए, रतन टाटा जी की हॉबी है नए एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाना. वो पैसे के लिए नहीं कर रहे, बहुत पैसा है अगले के पास. तो इफ he is giving money to a startup to do something, then he is not doing it for the purpose of profit. Okay, he is doing it because it's his hobby. So something like that. Okay, इनका इन्वेस्टमेंट जनरली कहाँ से कहाँ तक रहता है? $10,000 से $2 लाख तक. अब आ जाओ माइक्रो मैनेजमेंट एंजल्स पे. अब देखो, ये माइक्रो मैनेजमेंट एंजल्स वो इन्वेस्टर्स हैं जो बहुत सीरियस है, जॉब को लेके भी और वर्क को लेके भी. ठीक है, बहुत डोमिनेटिंग है ये नेचर में और ये आसानी से पैसा नहीं देते. और ये देते हैं तो बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा के देते हैं, कंपनी भी इनके हिसाब से चलनी चाहिए, सब कुछ इनके हिसाब से होना चाहिए. तो ये होते हैं माइक्रो मैनेजमेंट एंजल्स. ये हर चीज में टांग अड़ा के रखेंगे आपकी कंपनी में. ये कहाँ से कहाँ तक पैसे देंगे? ये 25,000 से $2 लाख तक आपको पैसे दे सकते हैं. ठीक है, फिर होता है प्रोफेशनल एंजल्स. ना प्रोफेशनल एंजल्स वो एंजल्स होते हैं जो एक्सपर्ट है एक पर्टिकुलर फील्ड में. तो मानो आपने कोरोना वायरस का नया वैक्सीन बना लिया. ठीक है, अब उसके लिए डॉक्टर तो चाहिए ना, तो कोई ना कोई ऐसा बोर्ड पे तो लेके आओगे ना जिसको मेडिसिन की नॉलेज होगी, जो आगे जाके टेस्ट कर पाएगा इसको. ठीक है, सिमिलरली मानो कोई लॉयर है. ठीक है, और लॉयर जो है वो क्या कर सकता है? वो अपनी सर्विसेज दे सकता है किसी फर्म को जो कि प्रॉबेबली यू नो इट इज इन अ सिमिलर डोमेन. कुछ लॉ के रिलेशन में उसने कुछ नई चीज निकाली है, कोई नया पोर्टल निकाला है, कुछ निकाला है. तो ये you know these type of angels are aligned with their profession and they give money as per as per the profession in which they are. इनका इन्वेस्टमेंट कहाँ से कहाँ तक रहता है? 25,000 से वही $2 लाख तक रहता है. ठीक है, now the book is talking about some of the popular angel investors. I will just have a look at only one of them. I think rest you can have a look on your own. Look, this is talking about Rajan Anandan. अब Rajan Anandan कौन है? He is basically the vice president Southeast Asia and India at Google. And he has been an active angel investor who invests in early stage technology companies. Early stage मतलब जो बिल्कुल नई नई टेक्नोलॉजी लाती है ना, बिल्कुल नया आउट ऑफ द ब्लू सोच के, वो वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं.
He has invested in various countries like India, Sri Lanka, US. In India, he has invested across various sectors. Internet में भी invest किया हुआ है, mobile में भी, software startups में भी, okay. And some of these किस companies में इन्होंने invest कर रखा है इसके नाम है, like you have this Capillera, there is this Wickwick, Etikis, AuthorStream, Just Eat, Buy the Price, Peelworks, okay. Then and he has basically funded like close to 45 startups. So there are people who are into this game, who do play it very seriously. Next we have is what do you call them? You call them as venture capitalists. Venture capitalists कौन होते हैं? अब देखो venture capitalists भी obviously बात है, ये भी पैसा देंगे, ठीक है, बट ये एंजल इन्वेस्टर्स की तरह नहीं देंगे, ठीक है. एंजल इन्वेस्टर्स ने तो देखा कि अच्छा अच्छा आइडिया है, इक्विटी फाइनेंसिंग आ गई, ठीक है ना, हमें इनकी मैनेजमेंट से कोई लेना देना है ना कुछ और कोई लेना देना है, ठीक है, पैसा देंगे उनको चलाना है, अच्छा कंपनी चली जाएगी, हम शेयर बेचेंगे और काम हो गया. Venture capitalists are not like that. Okay, they will give you long-term capital, and these are generally they generally fund those projects which are very very risky at the very outset. Okay, मतलब ऐसे projects जिनका potential भी बहुत ज्यादा है but risk भी बहुत ज्यादा है कि ये fail हो सकते हैं, पता नहीं चले ना चले market के अंदर, ठीक है. तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को जनरली फाइनेंसिंग कौन देता है? ऐसे लोगों को फाइनेंसिंग एंजल इन्वेस्टर्स नहीं देंगे, वो कहेंगे हमारे पास बहुत प्रेशियस पैसा है, हमारे पास डुबाने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है. सो दे विल गिव यू दिस मनी. Okay, why? Because these people they love risk, and obvious सी बात है, जितना ज्यादा रिस्क होता है उतना ज्यादा इनका प्रॉफिट भी होता है. Fine. So, look, these are basically called as deep-pocketed financial gurus who invest in new ventures. Okay, they will pool their resources and they will invest during the very early stage of business. Okay, once the organization is profitable, मतलब उन्होंने एक बार प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया, वो अपने आप सेल्फ सस्टेनिंग हो गई है, तो वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करेंगे, अपना पूरा का पूरा स्टेक बेच देंगे और निकल आएंगे बाहर, ठीक है. सो ये ऐसे करते हैं, ठीक है. सो दीज आर वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करती है, ये पैसा तो देती है, साथ ही साथ दे हेल्प टू किक स्टार्ट द बिजनेस. अगर बिजनेस को कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको असिस्टेंस चाहिए किसी भी चीज में अलॉन्ग विद इन्वेस्टमेंट, सो दे विल गिव ऑल देयर सर्विसेज एंड इन रिटर्न दे विल चार्ज फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ फीस. ओके. नाउ बेसिकली इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो, ठीक है, ये लोग सर्विसेज वगैरह देते हैं, बट मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट दे गिव यू कैपिटल. एंड कैपिटल आपको कौन से पॉइंट पे देते हैं, ये उस पॉइंट पे देते हैं जहां पे आपको और कोई कैपिटल देने को तैयार नहीं होता, ना कोई बैंक, ना कोई एंजल इन्वेस्टर, ना कोई बिजनेस इंक्यूबेटर, ना कोई फ्रेंड्स, ना फैमिली. नोबडी इज विलिंग टू गिव यू पैसा. ओके, दे कम टू योर रेस्क्यू एट दैट पॉइंट. Okay, provided you convince them that yeah, your project is worth the risk. Fine. ऐसा नहीं है कि आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल बेकार है, बहुत रिस्क है और ये आपको पैसा दे देंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है. they have their own methods of studying, but if it has some promise which others can't see but they can see, they will definitely give you the money. Now, venture capitalist projects are long term in nature. They are long term risky investment and it takes time to earn profits. अब देखो, ये long term nature का होता है, ठीक है. इन्होंने ये नहीं सोचना कि आज पैसा दिया है तो 1 साल बाद ही डबल होके वापस आ जाएगा या 2 साल बाद ही डबल होके वापस आ जाएगा. उनको पता है कि टाइम लगेगा, 5 साल 10 साल लगेंगे कंपनी को किक स्टार्ट होने में, बढ़ने में, ग्रो करने में. तो दे विल वेट. Okay. Now this is basically again a form of investment in which even they invest in the form of equity capital only. Fine. तो ये convertible securities ले सकते हैं, stocks ले सकते हैं, equity shares ले सकते हैं, यही सब form में ये भी invest करते हैं, ठीक है. Now it is obviously a support to entrepreneurs. Support कैसे है, क्योंकि देखो, obviously they are giving money in return for equity capital, but हाँ, आपको ये नहीं है कि कोई collateral जमा कराना है इनके पास या कोई कुछ गिरवी रखना है फिर आपको support मिलेगा. Okay, so they give you enough support like that. Then management. अब venture capitalist जो है basically look, they will not interfere in your day-to-day affairs of the firm. Okay, but जो आपकी overall management और decision making में है ना, उनका role होता है, ठीक है. तो वो आपको डे टू डे में इस आदमी को रखना है, उस आदमी को रखना है, देवल से किसी को भी रख लो, वी आर नॉट कंसर्न. डे टू डे वर्किंग जो जैसी करनी है वैसी करो. बट आप कहते हो, मानो मुझे एक नई फैक्ट्री खरीदनी है, मुझे वहां लैंड खरीदना है, वहां लैंड खरीद के एक और फैक्ट्री लगानी है, तो दे विल पोक देयर नोज, देन दे विल टेल यू दैट you do as per what we are saying. Projects undertaken
अब जनरली इनके प्रोजेक्ट्स इनोवेटिव होते हैं, रिस्की होते हैं, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होते हैं, ठीक है, और ये आपको सारा अपना इन्वॉल्वमेंट देते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्किल्स, रिसोर्सेज, you need financial planning, guidance, whatever you need, they will help you with that. Fine. Then there is this high risk return ratio. This I've already told you. This is a boost for small and medium enterprises. Generally, obvious सी बात है कि इन लोगों के लिए तो बहुत बड़ा boost है small और medium scale enterprises के लिए, ठीक है, और ये कुछ सालों से ही venture capitalist का जो concept है वो इंडिया में आया है. Fine. Okay, just give me a minute. Let me see how much can I do today. Okay, I don't think I will be able to do bootstrapping. Let me try to finish with venture capitalists only. चलो start करते हैं. So what is this venture capital का process? देखो, अब अगर venture capitalist को आपको बुलाना है तो ना कुछ steps follow होते हैं. क्या steps follow होते हैं बेटा? सबसे पहले तो deal होती है. अब deal कैसे होती है बेटा? पहले आप जो भी है आप अपना business idea बताओगे. आप बताओगे उसके अंदर क्या यूनिक है, क्यों वो इतना रिस्क उठाने लायक है, कैसे एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है उनके लिए. तो शुरू में डील में ये सारी चीजें होंगी, ठीक है. फिर उसके बाद स्क्रीनिंग प्रोसेस होगा. स्क्रीनिंग प्रोसेस में क्या करेंगे, जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो आपके प्रोजेक्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे. वो देखेंगे क्या 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 उनके प्लस है, क्या क्या उनके नेगेटिव्स है, ठीक है, कितना टाइम लेबर एफर्ट लग रहा है, हर चीज का वो एक डिटेल्ड स्टडी करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, ठीक है. अब उसके बाद वो इवैल्यूएशन शुरू करेंगे. अब क्या करेंगे, देखो बेटा, हर वेंचर कैपिटलिस्ट की नीड और हर स्टार्टअप की नीड्स ना अलग अलग होती है. कई वेंचर कैपिटलिस्ट कहते हैं हम मार्केटिंग सपोर्ट बहुत अच्छा दे सकते हैं, कई लोग कहते हैं हम टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट बहुत अच्छा दे सकते हैं, ठीक है. तो वो चाहते हैं कि जो नीड्स है वेंचर कैपिटलिस्ट की, दे शुड फिट विद द नीड्स ऑफ द स्टार्टअप. मानो अगर आपका स्टार्टअप को ज्यादा जरूरत है मार्केटिंग सपोर्ट की और आप कहते हो भाई हमें तो मार्केटिंग आती नहीं, हम तो अच्छा ना टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, so that venture capitalist is not a good fit for you. You should not go for that venture capitalist because he does not know, matlab he is not fitting in with your need. Okay, so you have to see that your needs of the venture capitalist are fitting with the needs of the startup. फाइन. एंड लास्ट में बेटा स्ट्रक्चरिंग द डील है, तो उसके अंदर तो आपको सबको पता है कि नेगोशिएशन होगी, कंसल्टेशन होगी. वो कहेंगे अच्छा इतना पैसा उतना पैसा, इतने इक्विटी शेयर्स उतने इक्विटी शेयर्स, कंट्रोल कैसे डिवाइड होगा, फलाना कैसे होगा, एंड दोस थिंग्स आर डन, सो द डील इज स्ट्रक्चर्ड ओवर देयर. Fine. Okay. Now, अच्छा ना, अब वो क्या क्राइटेरिया यूज करते हैं ये वेंचर कैपिटलिस्ट आइडिया स्क्रीन करने के लिए? एक तो ये देखते हैं कि यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है या नहीं है. तो ऑब्वियसली योर आइडिया शुड बी यूनिक, only then it is going to attract the venture capitalists. Then there is high possibility of capital appreciation. Look, all of them go hand in hand, ठीक है. अगर आपका आइडिया यूनिक है और अच्छा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आज मानो यू आर थिंकिंग अबाउट इट और कल को वो लॉन्च होता है और वो बहुत अच्छा चल जाता है, तो जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो बहुत ज्यादा होगा. तो अगर आजकल आप बात करो तो लोगों को इमोशनल काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत हो गई है. आप देखोगे कि एक नया ब्रीड निकल के आ रहा है साइकोलॉजिस्ट का, एंड देयर इज सो मच डिमांड ऑफ साइकोलॉजिस्ट दीज डेज, स्पेशली विद कमिंग ऑफ द पैंडेमिक. वी आर नॉट इन अ सिचुएशन टू हैंडल आवर मेंटल हेल्थ. किसी ने नहीं सोचा था कि हमारी लोगों की मेंटल हेल्थ इतनी खराब हो जाएगी, हमें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा और जिंदगी जीने के लिए मतलब मोटिवेशन लेनी पड़ेगी, ऐसा कुछ करना पड़ेगा. मेनी स्टूडेंट्स who were left alone during the second wave, they were so tense, they used to call up and tell that मतलब हमें डर लग रहा है. अगर किसी को कोरोना वायरस हो जाता है तो लोग डर के मारे आधे से ज्यादा लोग मर जा रहे हैं, जबकि मरना नहीं चाहिए. मतलब ठीक है, यू विल गेट फाइन, ओके, बट यू नीड दैट मेंटल हेल्थ का सपोर्ट. तो मानो आपके पास एक ऐसा बिजनेस है जो कि इन सब चीजों के ऊपर सेल कर रहा है, ठीक है. तो ऑब्वियस सी बात है कि अब पैंडेमिक है और पैंडेमिक तो अभी चलेगा ही चलेगा. देयर इज नो एंड, सीमिंग एंड टू दिस पैंडेमिक इन द नियर फ्यूचर. तो ऑब्वियस सी बात है कि कैपिटल एप्रिसिएशन तो होगा ही होगा. एंड देन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम. मैनेजमेंट अगर आपका बहुत अच्छा है, आपकी मैनेजमेंट टीम बहुत अच्छी है, आपकी जो लोग काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर, दे आर वेरी डेडिकेटेड एंड दे आर एक्सपीरियंस्ड, दे आर क्रिएटिव, then these are some of the factors that venture capitalists they see before giving you money. Okay. Now it is saying that what are some of these criteria to choose a suitable venture capitalist. I think this you can go on your own. I'm just quickly coming to the advantages of venture capitalists. Look, they ensure availability of finance during the various stages of business. Obviously they give you finance.
then they give you access to second round of financing. अब बेटा होता क्या, ये भी ना अलग अलग राउंड्स में फाइनेंसिंग देते हैं. मानो पहली बार आपको फाइनेंस दिया, कंपनी अच्छा चल गई, आपने कहा और पैसा दे दो, अभी इसको ना और ग्रो करेंगे, डोंट गो फ्रॉम दी फर्म. तो एक सेकंड राउंड ऑफ फाइनेंसिंग भी हो सकता है. तो सेकंड राउंड ऑफ फाइनेंसिंग के लिए भी दे हेल्प यू. तो आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ती. देन दे गिव यू एडवाइस, नेटवर्किंग एक्सेस एंड मार्केट एक्सेस एंड ऑल दोस सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर देयर. और ऑब्वियसली बात है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ये लोग काफी एक्सपीरियंस्ड होते हैं. एंड देन अगर कुछ भी गलत जाता है आपके एंटरप्राइज में, दे कैन इजीली सेंस इट एंड ब्रिंग यू ऑन दी राइट ट्रैक. डिसएडवांटेजेस क्या है? शेयरिंग ऑफ कंट्रोल. बहुत नाक गड़ाते हैं ये लोग ना अपनी, दे आर वेरी पोकी. They will keep on poking their nose in everything that you are doing. So you have to share your control with them. Then वेंचर कैपिटलिस्ट देखो वैसे तो डे टू डे अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं करते, बट बहुत बार उसमें भी करने लगते हैं, तो फिर अगेन स्टार्ट्स क्रिएटिंग प्रॉब्लम. ठीक है. देन इंटरेस्ट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर एंड वेंचर कैपिटलिस्ट में नॉट अलाइन. अब एंटरप्रेन्योर कह रहा है भाई मेरा आउटलुक तो ये है, मेरा मिशन तो ये है. वेंचर कैपिटलिस्ट कह रहा है मेरा तो दूसरा मिशन है. अगर दोनों का ही थॉट प्रोसेस मैच नहीं करेगा, देन इन दैट केस वेयर विल द फर्म गो, बिकॉज दीज आर द टू व्हिच हैव टू गो अगेन हैंड इन हैंड. ठीक है. इन लोगों का विजन अगर अलग अलग होगा तो कंपनी नहीं चल पाएगी. इट इज एन अनसर्टन फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग. अगर वेंचर कैपिटलिस्ट का मन करा तो वो कभी भी छोड़ के जा सकता है आपको. ठीक है. तो इट इज अनसर्टन. नाउ टाइप्स ऑफ फंडिंग बाय वेंचर कैपिटलिस्ट. अब देखो ये लोग अलग अलग तरह की फाइनेंसिंग करते हैं. ठीक है. तो दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट दैट वी शुड डू. दिस इज इम्पोर्टेंट. सो इट सेज फर्स्ट इज द अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग. अब देखो अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है कि जो बिल्कुल शुरू में बिजनेस आपने फ्लोट किया है, बिल्कुल शुरू के टाइम पे आपको फाइनेंस देना. ठीक है. तो इसके अंदर क्या क्या आता है आपका? इसके अंदर आता है आपका सीड फाइनेंसिंग. देखो सीड फाइनेंसिंग बेसिकली क्या होता है कि आपको बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में ये पैसा दे रहे हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए. ठीक है. तो मेन पर्पस ये है कि आपको वो पैसा दे ये जानने के लिए कि आइडिया जो है वो फीजिबल है भी या नहीं भी है. एक प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बना के तो देखो. तुम कह रहे हो कि हाँ हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे सब करेंगे, पहले स्टडी तो करके देखो कि क्या ये आइडिया फीजिबल है, क्या लोग एक्चुअली खरीदने को तैयार होंगे ये आइडिया. ठीक है. तो इस तरह के स्टेज में जो पहला स्टेप हम लोग करते हैं वो ये देखते हैं कि क्या जो आप आइडिया सोच रहे हो क्या वो वायबल है भी या नहीं भी है. ठीक है. तो उसको टेस्ट करने में जो खर्चा लग रहा है वो सीड फाइनेंसिंग में आ रहा है. फिर दूसरा होता है आपका स्टार्टअप फाइनेंस. अभी स्टार्टअप फाइनेंस क्या होता है? देखो स्टार्टअप फाइनेंस मींस दैट योर आइडिया इज फाइन, योर प्रोडक्ट इज फाइन. ओके. अब उसको एक्चुअली मार्केट में लाने के लिए ना हमें फाइनेंसिंग चाहिए, मार्केटिंग की हेल्प चाहिए, मैनेजमेंट में हेल्प चाहिए, टेक्निकल हेल्प चाहिए. तो उन सब चीजों के लिए अगर आपको फाइनेंसिंग में हेल्प दे रहा है तो दैट इज स्टार्टअप फाइनेंस. देन नेक्स्ट इज फर्स्ट स्टेज फाइनेंसिंग. अभी फर्स्ट स्टेज फाइनेंसिंग क्या होता है? देखो एक बार आप कर चुके अपना काम, ठीक है, आपने प्रोडक्ट बना लिया, मार्केट में लॉन्च कर लिया, सक्सेसफुल हो गया, डन. ठीक है. आपने जो सोचा था उतना आपने काम कर लिया. अब आप क्या करना चाहते हो? एक्सपैंड करना चाहते हो अपने बिजनेस को. आप कह रहे हो कि मैं तो अभी रूरल मार्केट में था, अब ना मैं टियर 1 टियर 2 सिटीज में भी आना चाहता हूँ. ठीक है. मैं अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ाना चाहता हूँ. तो अगर आप वो सब चीजें करना चाहते हो एंड द वेंचर कैपिटलिस्ट इज गिविंग यू फंड्स, वो आपको पैसा दे रहा है, तो इन दैट केस दैट बिकम्स योर फर्स्ट स्टेज फाइनेंसिंग. सेकंड स्टेज फाइनेंसिंग क्या होता है? देखो सेकंड फेज फाइनेंसिंग तब होता है जब जब फर्म प्रॉफिट्स बनाती है, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स, ओके, योर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गोज अप. Okay, like with the happening up of the coronavirus pandemic, you will see, especially this year, you will see that all the raw materials are on a high. पेट्रोल का प्राइस एकदम हाई पे है. रॉ मटेरियल्स में आप कोई भी रॉ मटेरियल उठा लो, पिकअप कॉपर, स्टील, कोई कोई भी आप चीज उठा लो, सीमेंट, कोई कोई भी चीज उठाओ आप, हर चीज में आग लगी हुई है. एवरी रॉ मटेरियल इज ऑन अ हाई. बट अगर इस तरह की चीजें होंगी जहाँ पे हर जगह ही तेजी है, मतलब उसमें, तो ऑब्वियसली जितना पैसा आपके पास है बिजनेस करने के लिए, दैट वोंट बी सफिशिएंट. यू विल नीड एक्स्ट्रा फंड्स ना टू सर्वाइव इन द मार्केट. योर प्रोडक्ट इज आल्सो फाइन, मार्केट इज आल्सो फाइन, यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक, बट चीजें कुछ इस तरह से हो गई हैं कि आपको ज्यादा पैसे की जरूरत है. तो इस केस में अगर वेंचर कैपिटलिस्ट आके आपको पैसा देते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज सेकंड स्टेज फाइनेंसिंग. फाइन. Then next is called as your later stage financing. अभी later stage financing क्या होती है? देखो financing जो है वो every time ना it keeps on changing depending upon the requirements of the business. ठीक है. अब जैसे अब दिवाली का टाइम आ रहा है तो हो सकता है फाइनेंस ज्यादा चाहिए. ठीक है. दिवाली का टाइम चला जाएगा तो फाइनेंस कम चाहिए होगा. तो डिपेंड करता है कि कौन सा क्या है, आप बिजनेस कौन से बिजनेस में हो, कहाँ हो आप,
उसके हिसाब से पैसे की जरूरत पड़ती है। तो अब ये कह रहा है डेवलपमेंट और एक्सपेंशन फाइनेंस, इसको हम मेज़ीन फाइनेंस भी कहते हैं। देखो ये कब जरूरत में पड़ता है, जब बेटा आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करनी होती है, आपको अपना प्रोडक्शन कैपेबिलिटी बढ़ानी होती है, आपको अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाना होता है, आपको अपना कस्टमर बेस बढ़ाना होता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि आपका बिजनेस बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह के फाइनेंस को हम डेवलपमेंट या एक्सपेंशन फाइनेंस कहते हैं। फिर दूसरा होता है हमारा रिप्लेसमेंट कैपिटल। अब रिप्लेसमेंट कैपिटल क्या होता है, जब आप एक शेयर होल्डर को दूसरे के साथ रिप्लेस करना चाहते हो। ठीक है, दैट मीन्स एक शेयर होल्डर गया और आप कह रहे हो कि काम कर, उस शेयर होल्डर को पैसा मत दे, मैं वेंचर कैपिटलिस्ट हूँ, मैं ही पैसा दे देता हूँ तेरे को। ठीक है, तो इस तरह की अगर आप फाइनेंसिंग कर रहे हो उस कंपनी के अंदर, सो दिस इज कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट कैपिटल। फाइन। एंड देन नेक्स्ट इज टर्नओवर और रिकवरी फाइनेंस। देखो जब अगर बिजनेस अच्छे से काम नहीं कर रहा और आपको लग रहा है पोटेंशियल है, कर लेगा, कोई बात नहीं, साल 2 साल की बात है, अच्छा कर लेगा, अभी फिलहाल इसको सस्टेन करवा लेते हैं, अगर आप पैसा देते हो उस काम के लिए, देन यू नो इट बिकम्स अ टर्न अराउंड और रिकवरी फाइनेंस. Now you can just have a look at some of the prominent active venture capitalists in India, though the figures are a little old, but you know this really remains one of the most popular one, that is Sequoia. Then you have IDG Ventures, you have Indian Angel Network, you have Axel Partners, you have 500 startups. Okay, so you have so many you know these companies who give you finance at different stages. Okay, I actually wanted to cover this private equity as well. ठीक है, तो मैं क्विकली अब प्राइवेट इक्विटी के ऊपर आती हूँ। तो देखो प्राइवेट इक्विटी क्या होता है। प्राइवेट इक्विटी का मतलब होता है कि यहाँ पे ना लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब बैंक्स हो गई, कंपनीज हो गई, ठीक है, इस तरह के लोग होते हैं। वेल्दी इंडिविजुअल्स हो गए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो गई, विप्रो हो गया, ठीक है। बट ये जो जो भी पैसा दे रहे हैं ना, ये ऐसे उसमें दे रहे हैं जहाँ पे ना ये लिस्टेड है ना ये पब्लिकली ट्रेडेड है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे कोई काम नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब ये जो पैसा दे रहे हैं ये प्राइवेट कंपनीज में पैसा देंगे, एंड ये ऐसी कंपनीज को पैसा नहीं देंगे जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। ठीक है, तो ये दैट इज व्हाई द नेम गोज एज प्राइवेट इक्विटी, इसलिए इसका नाम क्या है, प्राइवेट इक्विटी है। मतलब ये उन्हीं कंपनीज को जाएगा जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है उनको ये पैसा नहीं देंगे। ठीक है, सो दिस इज नंबर वन। ठीक है, अब दूसरा फंडा क्या है, ये जो लोग होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनके पास बहुत सारा पैसा होता है। ठीक है, और ये बहुत लंबे लंबे टाइम तक कंपनियों को पैसा दे देते हैं। ठीक है, एंड यू नो बेसिकली इसमें जरूरी नहीं है कि प्राइवेट इक्विटी अगर हो रहा है तो ये बिल्कुल इनिशियल राउंड में आपको पैसा देंगे और फिर निकल जाएंगे। ये जनरली क्या करते हैं, ये मेच्योर कंपनीज के अंदर पैसा लगाते हैं, कि मिडिल या मेच्योर कंपनीज जो होती है उसमें पैसा लगाते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी कोई ना कोई टेस्ट जो है, सक्सेस जो है वो टेस्ट किया हुआ है मार्केट के अंदर। ठीक है, नाउ देखो हर प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर का या इक्विटी फर्म का अपना ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो वो अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अलग कंपनीज ढूंढती है और उनमें वो पैसा लगाती है। ठीक है, अब देखो कॉमन स्ट्रैटेजीज जो प्राइवेट इक्विटी की रहती है वो क्या रहती है, दे आर लेवरेज्ड बाय बायआउट्स, वेंचर कैपिटल, ग्रोथ कैपिटल, डिस्ट्रेस्ड इन्वेस्टमेंट एंड मेज़ीन कैपिटल। मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट। ठीक है, लेवरेज बायआउट्स में अगली क्लास में आपको बता दूंगी। लेवरेज बायआउट्स इज नथिंग दैट यू नो वेयर बाय आप एक कंपनी को खरीदते हो मेनली बाय डिबेंचर्स एंड यू नो अदर सॉर्ट ऑफ फाइनेंसिंग। सो देखो चार बेसिक थिंग्स है प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए टू अर्न मनी। फर्स्ट इज रेज मनी। तो ये क्या करते हैं, ये पैसा पहले रेज करेंगे लिमिटेड पार्टनर से, जैसे कि पेंशन और रिटायरमेंट फंड से, एंडोमेंट फंड से, इंश्योरेंस कंपनी से, वेल्दी इंडिविजुअल से। अपना पैसा नहीं लगाते ये लोग, अपना पैसा नहीं लगा रहे, जो दूसरों का ऑलरेडी लगाया हुआ पैसा है ना मार्केट से, उसको उठा के उसको दूसरी कंपनीज में लगा रहे हैं। दे कंडक्ट ड्यू डिलिजेंस स्टडी एंड देन क्लोज डील टू एक्वायर कंपनीज। अभी क्या करते हैं ये लोग, स्टडीज करते हैं और फिर कंपनी में पैसा लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हमने तो आज जोशी जी को दिखाया, उन्होंने कहा ये कंपनी अच्छा करेगी, अच्छी, चलो इसमें पैसा लगा दो, ऐसा नहीं करते। ठीक है, देन दे इम्प्रूव ऑपरेशंस, कट कॉस्ट एंड टाइटन मैनेजमेंट इन देयर पोर्टफोलियो कंपनीज। जहां पैसा लगाएंगे वहां जरूर ना खड़ाएंगे, अपनी ऑपरेशंस में भी दिमाग लगाएंगे, कॉस्ट कटिंग भी करेंगे, मैनेजमेंट को भी टाइट करके रखेंगे, कंपनी को एफिशिएंट बना के रखेंगे। दे विल सेल पोर्टफोलियो कंपनीज, मतलब वो बेचेंगे उसको, ये भी बेच के तो जाएंगे, ऑब्वियसली हर कोई आया है तो बेचेगा, वरना प्रॉफिट कैसे कमाएगा। ठीक है, तो बेचेगा और प्रॉफिट कमाएगा। Fine. Now, how does it work? I really don't think that, you know, for BCom, we really need to go into so much of details. I will just quickly tell you that, you know, what is this bootstrapping, and then we will call it a day.
बेटा बूटस्ट्रैपिंग का मतलब क्या होता है? बूटस्ट्रैपिंग का मतलब ये होता है जब आप अपना खुद का पैसा अपने बिजनेस में डालते हो तो उसको हम बूटस्ट्रैपिंग कहते हैं। दैट मीन सेल्फ फाइनेंसिंग योर बिजनेस। ठीक है, अब सेल्फ फाइनेंसिंग क्यों मतलब अच्छी है? देखो क्रिएटिव फ्रीडम है, पूरा कंट्रोल आप ही के ऊपर रहेगा ना वेंचर कैपिटलिस्ट की बात सुननी ना एंजल इन्वेस्टर की बात सुननी। ज्यादा फोकस कर सकते हो अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो जो भी ध्यान है वो छोटे बिजनेस पे ही रहना है। ठीक है, बिजनेस छोटे स्केल पे करो, अच्छे तरह से रिसोर्सेज यूज करोगे, ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे। हाई रिस्क, बहुत ज्यादा हाई रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता। अगर फेल हो भी गया तो ठीक है, अपना ही पैसा जा रहा है, किसी और का पैसा तो नहीं देना। एफिशिएंसी इन ऑपरेशंस, ऑब्वियस सी बात है, जब खुद का पैसा लगा होता है तो अलग ही एफिशिएंसी आती है ऑपरेशंस के अंदर, दूसरों का पैसा लगा होता है तो इतनी एफिशिएंसी नहीं आती। ठीक है, देन लेस आउटसाइड इन्फ्लुएंस, जैसा आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बाहर का जो इन्फ्लुएंस है वो कम होता है। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने अपने आप को बूटस्ट्रैप किया। लाइक वन ऑफ देम इज द स्नैकेबल, ये आजकल काफी चल रही है। ये मॉडर्न स्नैक्स बेचती है जो बड़ी हेल्दी वगैरह होते हैं, कन्वीनियंट प्राइसेस पे। इफ यू वांट यू कैन गो टू इट्स वेबसाइट एंड जस्ट चेक इट आउट। तो look, they have served so many customers over 40 cities। तो आजकल तो इनका ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत ज्यादा हो गया है। आप देखोगे इनका फेसबुक पे भी बहुत ऐड आता रहता है एंड दे आर रियली इनटू दिस हेल्दी स्नैकिंग काइंड ऑफ अ थिंग। ठीक है, उसके बाद और क्या होता है बेटा? उसके बाद हमारे पास ना क्राउड फंडिंग नाम की भी चीज होती है। मैं ये भी फटाफट से फिनिश कर लेती हूँ आपके साथ। क्राउड फंडिंग बेसिकली क्या होता है? क्राउड फंडिंग का मतलब ये है कि आप किसी भी पर्पस के लिए, जरूरी नहीं है स्टार्टअप है, मानो मानो कोई बच्चा है, ठीक है, उसको कोई बीमारी हो गई है, उसके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, उसके बारे में पूरा एडवर्टाइजमेंट वगैरह डाल के, आजकल तो बहुत ही कि नया ट्रेंड आ गया कि सेलिब्रिटीज को भी बुलवाते हैं उसके लिए। ठीक है, और फिर लोगों को कहते हैं कि आप ऑनलाइन आओ, चाहे 10 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करने, 20 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करने, जितना आपका दिल है आप उसको कॉन्ट्रीब्यूट करो एंड जस्ट हेल्प दैट थिंग। बदले में कोई कुछ मिलता मिलता नहीं है, ना कोई इक्विटी स्टेक मिलता, ना कुछ मिलता है। दैट इज जस्ट टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये होता है बेटा आपका क्राउड फंडिंग मॉडल। तो ये भी आजकल बड़ा इन है। ठीक है, तो देखो इसमें ना दो तीन तरह के मॉडल्स होते हैं। इंडिया में देखो जनरली जो चलता है वो डोनेशन मॉडल चलता है। मतलब आपने जो दिया वो डोनेशन के तौर में दिया, आपको बदले में कुछ नहीं मिला, ना इक्विटी शेयर मिला, ना डिबेंचर मिला, कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो आप जो भी आपको आइडिया या कॉज सपोर्ट करना है आप उसके लिए पैसे दो एंड दैट्स इट। तो लाइक यू हैव ऑर्गेनाइजेशंस लाइक कीटो, यू हैव मिलाप, भरी पड़ी है। ऑनलाइन जाओ और सर्च करो, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ये डोनेशन मॉडल पे काम करती है। फिर लेंडिंग मॉडल में क्या होता है? लेंडिंग मॉडल जो है वो कहते हैं कि आप कुछ पैसा दो और बदले में ना हम आपको कोई बेनिफिट देंगे, जैसे कोई फ्री वाउचर दे दिया, कोई फ्री सर्विस दे दी। इस तरह से ये लोग काम करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज द लेंडिंग मॉडल। इक्विटी बेस्ड मॉडल बेटा, इक्विटी बेस्ड मॉडल ना इंडिया में अभी अलाउड नहीं है क्राउड फंडिंग का, इट इज स्टिल नॉट अलाउड। इसके अंदर जो डोनेशन दिया जाता है उसके बदले में इक्विटी शेयर कैपिटल दिया जाता है, ये अभी भी इंडिया में लीगल नहीं है, तो इसलिए आपको यहाँ पे ये मॉडल जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, so like you have various crowdfunding models, as you can see over here, you have Milap, you have Wishberry, you have Keto. So they have different visions and they are formed for different purposes. तो आप देख सकते हो एक बार इसके अंदर, जैसे विशबेरी जो है वो आर्ट इवेंट्स डिजाइन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करता है। तो कोई पेंटिंग्स है, कोई रूरल एरिया में काम कर रहा है, कोई नया आर्ट है उसके पास, तो उन सब चीजों को सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं। सो आई थिंक दैट वुड बी इट। जस्ट लेट मी हैव अ लुक। फाइल तो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दी है व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आप वहां पे देख लेना बच्चे फाइल। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट्स बेटा प्लीज क्लास का लिंक शेयर कर दो एक बार ग्रुप पे। टुडे आई एम नॉट एट होम, सो आई एम ज्वाइनिंग बाय अनदर नेटवर्क, so I will not be able to share the link. Fine, so that is it. Thank you all of you. Bye.